morning, students. Let us start today's class. We have completed the chapter yesterday, and today we will do exercises of the chapter. Now, part A, choose the correct options. Who among the following is the head of the union government? मैंने आपको बताया था head of the government is the prime minister and head of the country or head of the state is the president, right? तो इसका मतलब इसका आंसर है the prime minister is the head of the union government. Next is the supreme commander of India's defense forces. Supreme commander कौन होते हैं defense forces के? He is the president of India. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? जो ठीक है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो करनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. क्या ये ठीक है? यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक लिंक होते हैं. नो, इट इज नॉट करेक्ट. इसका मतलब है द वाइस. इसके बाद नेक्स्ट आता है the vice president of India is not entitled to all the powers and privileges due to the president even if he or she is officiating. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के सारे इमोल्यूमेंट्स और इम्यूनिटीज नहीं मिलती हैं अगर वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है. All the members of Rajya Sabha are entitled to vote in the presidential election. President election में सभी members राज्यसभा के वोटिंग कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था nominated members do not participate in the president election. इसका मतलब ये भी statement जो है incorrect है. अब last statement देखते हैं. The president of India is an integral part of Indian Parliament. ये ठीक है कि नहीं? Yes, it is correct. The President of India is an integral part because no bill becomes a law without the approval of the President. That means this fourth statement is correct. B part is correct. यही पूछा गया था कौन सी statement true है. Fourth question है the President can dissolve the Lok Sabha on the advice of. किसकी advice पर? The Prime Minister of India advise करते हैं कि लोकसभा को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए. वी आर अनेबल टू वर्क मोर. फिफ्थ क्वेश्चन है इन केस ऑफ सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ. कौन से फंड में से प्रेसिडेंट जो है वो मनी सैंक्शन कर सकते हैं गवर्नमेंट को? इट इज कंटिंजेंसी फंड. कंटिंजेंसी फंड, राइट. करिए बेटा पार्ट ए जल्दी से. उसके बाद पार्ट बी कर लिया होगा शायद. पार्ट ए तो जल्दी कंप्लीटेड. यस, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स. इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एंड रियल. द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट प्रोसेस से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है. Next is the Union Council of Ministers is there to aid and advise. Aid and advise the President of India. Responsibility of the ministers to defend their acts and decision is called collective responsibility. Collective responsibility कहा जाता है. Next, the President of India is elected by single transferable vote system. Write down please. Part B. Next. यहाँ पर सी की जगह एस ई लिखिए बेटा. एस ई. कंप्लीटेड. पार्ट सी करते हैं ट्रू फॉल्स. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नो, इट इज फॉल्स बिकॉज देयर इज प्रेसिडेंट ऑल्सो. यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेसिडेंट होते हैं.
The President of India cannot be re-elected for a second term. It is also false, क्योंकि हमारे देश के president जो हैं वो second term के लिए भी elect हो सकते हैं. All the elected members of parliament and the state legislative assemblies elect the president of India, right? ये तो ठीक है. जो पार्लियामेंट के मेंबर्स यानी लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? द imposition of emergency in state is called president's rule. This is also correct. True. The chairman of Rajya Sabha must be a member of Rajya Sabha. क्या चेयरमैन को राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है? नो, इट इज फॉल्स. कंप्लीटेड. चले, ऑल हैव कंप्लीटेड. Now our first question is explain the judicial powers of the president. Judicial powers करनी है हमें president की. Let us do. First, सबसे पहले तो the president can appoint the judges of Supreme Court and High Courts along with the Chief Justices. First point. All the judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President of India. It is one of the judicial power of the President. Second करिए बेटा. Can reduce the sentence or grant pardon. किसी की सजा माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. Third, can change the death sentence or postpone it. किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको कम चेंज कर सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी उसकी डेट आगे बढ़ा दी जा सकती है इसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट? दीज आर द जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट डाउन प्लीज. कंप्लीटेड और नॉट? जल्दी से कंप्लीट कीजिए बेटा. नाउ आंसर नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज explain the process of electing the president of India. यानी president election का क्या procedure है हमें वो बताना है. The president is elected by, इस तरह से होता है, देखिए, the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state
legislative assemblies. बताया था कि इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी मेंबर्स जो इलेक्टेड हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सेकंड पॉइंट लिखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स do not participate. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड 12 मेंबर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इन राज्यसभा, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते. थर्ड लिखिए, द इलेक्शन इज डन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, प्रेफरेंस वोट्स लिए जाते हैं और उसी से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का. और मोर देन 50% more than 50% votes are needed to secure the seat. यानी जो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स, उनकी कम से कम नहीं 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए अगर प्रेसिडेंट की सीट पर इलेक्ट होना है तो. राइट डाउन प्लीज. दिस इज पार्ट डी. पार्ट डी का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा. प्लीज बी फास्ट. कंप्लीटेड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. ये क्वेश्चन है हमारा बेटा. कॉलम्स में करेंगे. पहले नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एंड देन रियल एग्जीक्यूटिव. चलिए फर्स्ट लिखिए, अ पर्सन who heads the executive branch but does not have the power to enforce major and important decisions. समझिए इसको. वो व्यक्ति जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड तो है, हेड ऑफ द कंट्री तो हम प्रेसिडेंट को मानते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर किसी भी रूल को एनफोर्स करने की. तो ये है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. अब देखते हैं रियल एग्जीक्यूटिव क्या है. A person or body who has the real power
to execute all major and important decisions. ये है रियल एग्जीक्यूटिव, ऐसा व्यक्ति या फिर कोई बॉडी ग्रुप ऑफ मेंबर्स who has the real power to execute all major and important decisions, जिनके पास रियल पावर हो सभी रूल्स और रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करना या एनफोर्स करने का. दिस इज रियल एग्जीक्यूटिव. लेट अस राइट द एग्जांपल. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the example of nominal executive. और आपको पता है रियल एग्जीक्यूटिव का क्या है एग्जाम्पल. द प्राइम मिनिस्टर. एग्जाम्पल लिख लेना बेटा. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव. राइट डाउन प्लीज. Very good. Most of the students have done the question. Let us do next. Question number 4 is, on what grounds the President of India be removed, and explain the procedure. ठीक है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे रिमूव किया जा सकता है और किस ग्राउंड पर रिमूव, किस रीजन से रिमूव किया जा सकता है. लेट अस डू. Removal of the president. The president of India can be removed by the process of, क्या नाम है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट उस प्रोसेस का नाम है. by the process of impeachment, by the members of the parliament. पार्लियामेंट के मेंबर्स मतलब मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. राइट. प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं रिमूव इम्पीचमेंट प्रोसेस से. किस ग्राउंड पे? इफ द प्रेसिडेंट violates the constitution. अगर प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करते हैं तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है. ठीक है, यही है प्रोसेस. करें. राइट डाउन प्लीज द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट. डन बेटा. यस और नो. बेटा ये VIOLATE ये है स्पेलिंग वॉयलेट की. इफ द प्रेसिडेंट वॉयलेट्स, एस लगाइए, violates the constitution. Completed. Fifth question is, explain the powers or describe the powers and functions of the vice president of India.
powers and functions of the vice president of इंडिया। चलिए करते हैं। फर्स्ट, presides the meetings of the राज्य सभा। सभी राज्यसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करने का काम वाइस प्रेसिडेंट का होता है। Acts as the ex officio chairman in राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड लिखिए, acts as the president of India, president of India, acts, एक मिनट बेटा, acts as the officiating president, officiating president of India। किस कंडीशन में? If the seat of the president, if the seat of the president falls vacant, अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है, पोस्ट वेकेंट होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। राइट डाउन प्लीज। बेटा चेयरमैन से पहले एक्स ऑफिशियो लिखा है, EXOFFICIO, officio, ex officio। So students, we have completed part D of chapter number 19, the union government. The part is executive। A, B, C and D पार्ट जो है हमने आज इस क्लास में किया। अगर इन चारों पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, वन बाय वन आप मुझे बता सकते हैं। और उसके बाद बेटा वर्ड है वेकेंट, VACANT, वेकेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। थर्ड पॉइंट है बेटा केतन, एक्ट्स एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट। अगर हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कोई नहीं होता ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट, तब प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का सारा काम, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? सेकंड पॉइंट बेटा, एक्ट्स एज द ऑफिशिएटिंग चेयरमैन इन राज्यसभा। राज्यसभा में ऑफिशिएटिंग चेयरमैन के रूप में सारी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं राज्यसभा की, वो सभी चीजें वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही संभालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रिसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा। सभी राज्यसभा में मीटिंग्स प्रिसाइड करने की पावर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। सभी को क्लियर है बेटा?
थर्ड पॉइंट में प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, 2 बार प्रेसिडेंट है, फॉल्स वेकेंट। मीनिंग ऑफ वॉयलेट्स, वॉयलेट्स का मतलब होता है बेटा तोड़ना, उल्लंघन करना। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रैक्टिस किया जाता है। और बताइए, और बेटा पूछिए, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। कल हम पार्ट ई करेंगे, चैप्टर नंबर 19 का। अभी फिलहाल हमने पार्ट ए बी सी एंड डी किया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, देन वी विल कंटिन्यू अवर पार्ट ई टुमारो, राइट? आज के लिए इतना ही करेंगे हम। गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड बाय बाय।